have tried to find out the space. We have tried to find out the space required by some algorithms in the variables used in the algorithm, and it has two parts: fixed part and the variable part. Fixed part, it means the constant amount of the space that will always be required by the algorithm, and the variable part, which depends actually upon the variables and the size of the variables we are going to use, which varies accordingly. And based on these fixed part and the variable part, we can say the space complexity can be given by this formula: Sp is equals to C plus Sp of n, where C is the fixed part, constant part, and the Sp is the variable part, and n is the number of variable or the size of the variable we are going to use in the algorithm. Okay, so we have also taken an algorithm for this sum of AB, जिसमें हमने तीन स्टेप में कुछ दो वेरिएबल्स का सम किया है. So in this, the constant part will be what? Constant part is the value 10 that is being used. So constant C is 1, and the variable part, the variables we are going to use are 3, that is A, B and C. So in this formula I have also written that the space complexity will be 1 plus 3. Okay, so 1 plus 3, matlab, this is what the integer means. All the, by default, all the variables or constants we are using, we will consider them as an integer. So this is 1 plus 3 words. Okay, but if we will talk about in the bytes, so what happens actually? What happens actually, it will be 4 into 4, 16 bytes it will be used. Okay, or 4 into 2, 8 bytes it will be used. As integer will take only 2 bytes or 4 bytes as per the Windows specification. So it will be multiplied by either 2 or 4 in order to get the number of bytes. Okay, similarly in the case of okay. Hello. Have I joined? Am I listenable? Darshita? No, sir. I am not audible? Yes, sir. Audible to हो. अब दिख गया था. Screen, है ना? So this example have you done? Can you tell me that how many space it will take? This algorithm will take. Any one of you? आप दोनों में से कोई भी बताइए कि इसमें से कितना स्पेस ओवरऑल लिया जाएगा algorithm के थ्रू. Keeping that in mind that A is an array of the size n. A is an array of the size n, and suppose that A5 is an array that holds 1, 2, 3 or 5 elements, and the sum variable will be used to add all the elements in the array. So overall sum will be 15 at the end of this algorithm. So tell me what could be the space taken by this algorithm. कितनी space ली जाएगी algorithm के through? How much the array will hold? How much space the array will hold? Array A of n elements. Yes? Any one of you can tell me? दोनों में से कोई भी बताइए कितना स्पेस लेगा ये? No idea? Or should I explain? No, sir. Abhishek, do you have any idea? No, sir. Okay, so you have not attended this classes also. Okay, let me clear है ना. Like in the previous example, यहाँ पर variable कितने हैं? Tell me. Abhishek, how many variables we have in this example? If you are able to see this slide. How many variables are there in this algorithm? दर्शिता आप बताएं कितने Sir, वेरिएबल? 3. 3 वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट कितने हैं? Sir, 1. 1. So what we will do is we will take this for the calculation of the space, and in formula if we will put the constant as 1 and number of variables are 3. So total 4 words are there. I have also written in this. But Yes, sir. in terms of byte, it will be actually 4 into 4. If the integer will take 2 bytes, then it will be 4 into 2. And the integer will take 4 bytes, then it will be 4 into 4.
In this way, it ये will be 4 into 2 कैसे हुआ? 4 into 2. 2 is the size of integer. If I will talk about the size of integer, what is the data type? Data type integer size पढ़ा होगा ना आपने बेटा? How many bytes integer will take in the memory? Sir, 8. What 8? In terms of bytes, I am talking about how many bytes integer will take. अभिषेक आप बताएं. How many bytes integer will take? I think you should know this at least. How many bytes integer, character, and floats will take. In first year, I think you have studied about that. So now you should, let me clear that integer will take 2 bytes or 4 bytes. If I will write onto the PPT, integer will take either 2 or 4 bytes. 2 कब होगा? 2 है Okay, sir. 32 बिट सिस्टम में. 2 का मतलब होता है 2 bytes का मतलब है 32 bit system. If I am talking about the 32 bit system, then it will take 2 bytes. Okay, integer. And 4 bytes in the case of 64 bit system. Okay, character will take. Yes, sir. ये पता है आपको? Character will take 1 byte. याद आया होगा शायद, आपने पढ़ा तो है, ये श्योर है. Float will take 4 or 8 byte. On the same we have 32 Yes, sir. 32 bit और 64 bit. पढ़ा हुआ है आपने? Yes, sir. हाँ, तो इससे शायद आपको ध्यान आ रहा होगा. So here that is what I have calculated. So in this case, also I have multiplied 4 by 2, because by default we are considering that all the constant, the variables what we are using are of integer type. हमें मान लेते हैं by default कि ये सब integer type के होंगे. It's why मैंने इसको 2 से multiply किया है. Okay? Yes, sir. या फिर इसको 4 से भी कर सकते हैं यदि आप 4 बिट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो. ठीक. So now tell me that what could be the space occupied by this code, where a is an array of the element size n, sum is equal, sum एक variable है जो 0 initiate है, and we are repeating the step number 5 for I equals to 0 to n minus 1, and we are adding the values of array in the sum. Finally we are returning sum. So how much space will occupied by array A? How many elements are there in array? Sir, your voice is not audible. So your voice is breaking a lot. Okay. Now I am audible. A Hello. little bit. Am I audible now? Yes, sir. My A voice is little clear bit, now? sir. Yes, sir. Can you tell me how many size array will hold? N element. One array I am taking, and the size of the array, it means number of elements array can hold n. तो कितना साइज लेगा array मेमोरी में? Okay, tell me the sum. Sum कितना साइज लेगा? Sir, 5. Sum कितना साइज लेगा बेटा? Sum वेरिएबल. Sir, Sum इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है. How many space it will occupy in the memory? sir, 0 बता रहा है. Sir, 4 नहीं, KB, sir. सम बेटा 0 तो वैल्यू है उसकी. Yes, sir. 0 4 हम KB. सम में स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन सम एक इंटीजर है, तो कितनी बाइट लेगा मेमोरी में? अभी मैंने बताया आपको इंटीजर कितनी बाइट लेता है मेमोरी में. Sir, 8. इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है बेटा? अभी मैंने बताया था ना आपको, इंटीजर कितनी बाइट्स लेगा. हाउ मेनी बाइट्स इंटीजर विल टेक? Sir, 4 byte. यस, 2 और 4 बाइट. Sir, 4 to 16 byte. Sir, 2 to 4 byte it will consume depending upon what is the input given. 2 और 4 बाइट एक्चुअली. Yes, sir. अभी क्लियर है दर्शिता आपको? सर एक बार और बता दो.
अच्छा यहाँ देखो अब आप, ओके, एग्जाम्पल का मैंने आंसर दिखा दिया आपको। Now space taken by the n is also a variable. Now first of all what we need to do, we need to find out the number of variable or constant we are having in this algorithm. इस एल्गोरिथम में कौन कौन से वेरिएबल और कौन कौन से कांस्टेंट हमने यूज किए वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, सो वेरिएबल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक n वेरिएबल है, n इज अ वेरिएबल, तो कितना स्पेस लेगा इन टर्म्स ऑफ n इज 1। ओके, in terms of number n is 1। कितने नंबर अवेलेबल है, एक ही वेरिएबल अवेलेबल है n टाइप का। ओके, फिर आता है एक एरे का साइज n है, तो इन टर्म्स ऑफ n एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। यदि एरे की हम बात करें इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, यदि 5 एलिमेंट है तो n की वैल्यू है 5 है, तो ए जो है वो कितना स्पेस कितने नंबर ऑक्यूपाई कर रहा है, 5 नंबर ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, यस सर। फिर हम आते हैं सम के ऊपर। सम एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, लेकिन ये खुद कितने वेरिएबल होल्ड कर रहा है, एक वेरिएबल होल्ड कर रहा है। इट मीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन सम इज 1। फिर आई एक वेरिएबल है जो है वो लूप को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें आई की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक चलेगी। ओके, सो आई एक वेरिएबल है, कितने नंबर होल्ड कर रहा है, 1 नंबर होल्ड कर रहा है। ओके, is it okay now? These many variables we are having in this algorithm only, n, a, s, sum और 1 i। तो अब ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं कि हर वेरिएबल को कितने नंबर अवेलेबल हैं। अब यदि n एक इंटीजर टाइप का है तो वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। यदि इंटीजर टाइप का है तो वो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, या आप देखें, इंटीजर यदि 2 बाइट्स या 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट 4 और 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ यदि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करने वाला है, 2 या 4। हाँ, तो 2 होल्ड करेगा 32 बिट्स में और 4 होल्ड करेगा 64 बिट में। तो अब हम नॉर्मली लेके चलते हैं, क्योंकि राइट नाउ यस सर। हमारे पास या तो 2 या 4 दोनों ऑप्शन आप ले सकते हो। तो यदि मैं वापस अपने एग्जांपल में जाता हूँ, तो इंटीजर n, क्योंकि वो एक इंटीजर टाइप का था, वो कितने उसमें नंबर कितने थे, एक ही नंबर है उसमें, तो टोटल कितनी बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है वो, 1 into 4, दैट इज 4। इज इट ओके नाउ? यस सर। है ना, पॉइंटर मैं बताया था। और हमने क्या किया एक्चुअली, ये 1 into जो साइज है वो है 4, उससे 4 आया ये। ठीक है, ऐसे ही n ए में एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, n, और हर एलिमेंट इंटीजर टाइप का है, कितनी बाइट ऑक्यूपाई करता है, 4। तो यदि n एलिमेंट है तो कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 4n। इसी तरीके से सम कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 1 into 1 into 4। सिमिलरली आई जो है वो कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 1 into 4। अब भी समझ में आ गया, बिकॉज ये सब इंटीजर टाइप के हैं। अब सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो है वो फ्लोट टाइप का है, मान लो मैंने लिखा सम किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो सम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 4 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। समझ आया आपको? तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल टाइप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। इज इट ओके नाउ? Yes or no? Is it okay? Is it clear? Is it understandable? Yes sir। So now total space occupied by the algorithm will be, space कितनी होगी, हम इन सबको जोड़ लेंगे आपस में, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है, सो क्या स्पेस आया इसका, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने यूज किए, कैसे पता लगेगा? इन सबको जोड़ने में कितना आएगा, 4 + 4n + 4 + 4 कितना आएगा, 16। ओहो 4n है बेटा ये। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4n + 12, 4 + 4 + 4 + 4n, हाँ यस सर, 4n + 12 है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये होगा, ये 2 नहीं है, 4 है एक्चुअली, इसको यही ठीक कर लेना चाहिए। I need to correct over there only, 4 into n + 1। ओके, तो ये बाइट्स में n हमारे + 3। पास 4 into n + 3। हाँ, और नंबर ऑफ टर्म्स यदि n में देखें तो स्पेस कम सिटी है n + 3।
लेकिन यदि बाइट्स में देखें Yes, तो sir. कॉम्प्लेक्सिटी है इतनी 4n+3 बाइट्स। ये बाइट्स है मेरे पास, Yeah. BITYS बाइट्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आप करिए। इस एग्जांपल को सॉल्व करके बताइए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है ये। बताएं। z equals to a plus b plus c and return z। एनी आइडिया? अभी आप सुन पा रहे हैं? Sir, please can you repeat the question? क्वेश्चन इज सिंपल कि व्हाट इज द स्पेस कंप्लीटली for this particular code where integer z is equals to a plus b plus c and returning z. Integer occupy करता है 4. How many variables we are having in this? Sir, 3. 4 variables z, a, b, c. Yes, sir. So how many bytes it will use? It will use by 4. 20 bytes. 20 bytes कैसे? So 16, I think. 16 bytes. सर ए बी सी इन तीनों की 4 और सर जेड की भी और सर रिटर्न भी है। रिटर्न भी है। Yes. Who told this? अंशुल या अभिषेक? यस सर, सर अंशुल चौधरी। Anshul, you are right. It could be 20. Okay, but I have also discussed in the last lecture कि until and unless the return statement has not been hello, जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं होगी we need to use the return statement also. Till then we will not use the return statement. Okay, because हमारे पास अभी जो पार्ट है देखने वाला वो केवल यही है। अब रिटर्न में एक्चुअली क्या होता है कि जब जो कॉलिंग फंक्शन होता है वहां जाकर के वैल्यू स्टोर होती है। सो z की मेमोरी में ऑलरेडी ले चुका हूं, लेकिन सपोज यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है मेन x which holds the value that is written by the function. ओके, a b c d a, और इसका नाम मान लीजिए मैंने दिया है फंक्शन का a b c। मैं कह रहा हूँ Abhishek, I request you just turn off your mic. So right now, look, if you see the ABC is a function in which we are returning something z and that will be returned to the x. So if this statement is there in this coding, then we will use the variable value for x also. But right now, because return statement is only there and we are not storing somewhere, so z we have already calculated, z we have calculated है। तो इंटीजर z equals to a plus b plus c and z, ये चार वेरिएबल हैं, तो 4 into 4 16 बाइट्स ही होंगे। रिटर्न आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिटर्न भी यूज होता है, बट रिटर्न इस केस में होगा जबकि रिटर्न को होल्ड करने वाला कोई हो, उस केस में x भी होगा हमारे पास, तो 40 हो जाएगा वो। ये क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? यस और नो? No, sir. डाउट नहीं, चले आगे। ओके, नाउ कैलकुलेट द टाइम स्पेस कंप्लीटली फॉर दिस आल्सो। ये एक प्रोग्राम दिया है आपको, इसके लिए आप स्पेस कंप्लीटली कैलकुलेट करने की कोशिश करें।
जिसमें n एक लेंथ ऑफ एरे है, n एक वेरिएबल है, a एक एरे है, x भी एक वेरिएबल है, 4 बाइट्स ले रहे हैं मेमोरी में, और i भी एक वेरिएबल है, 4 बाइट्स है i के लिए भी। तो टोटल कितनी बाइट्स लेगा ये एल्गोरिथम? जल्दी निकालें फटाफट। अभी अभी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन भी किया भी है। टेल मी फास्ट। Yes, please. Anyone? Abhishek, are you there? Can you tell me what is the space occupied by this? I'm asking questions. Or Darshita, Sir, Yes, sir. बताएं. sir, How many please can you space? show that screen again? Yes, I was like showing that screen, but you are not responding. At least you respond. मैं बार-बार out होना पड़ता है screen से देखने के लिए कि you are there or not. So tell me, what could be the space complexity for this? हेलो, आपको आवाज आ रही है? 4 बताएं. How much space it will occupy? Fast. हेलो. Sir, Hello. 4. अभिषेक, कोई प्रॉब्लम है बेटा आपके माइक में? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? दर्शित, आप बताओ. Sir, 4. कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 4 बता रहे हैं आप. कौन कौन से हैं? हेलो. हाँ, हेलो. Sir, एक तो int a वेल, वेरी गुड. इंटीजर ए एक हो गया, n एक तो एन हो गया, और सर x हो गया, एक्स हो गया. वेरी गुड. और सर i Hello. तो 4 है ना. हाँ अभिषेक, मैं सुन रहा हूँ आपको. Yeah, sir, there is some problem going on. Someone is calling again and again on my phone. So that's why ओके, my mic is getting disconnected again. ओके, नो इशू, कोई बात नहीं. अब आप देख के बताइए. अभी ये दर्शिता बता रही हैं कि ए, एक्स और 4 बाई ठीक है, 4 बाई ठीक है. बोलो. आई भी एक है. दर्शिता, एक आई भी है बेटा यहाँ पर, लूप काउंटर आई. Sir, this will occupy around 20 bytes. अराउंड 20 बाइट्स नहीं होता है. आप एग्जैक्टली बताएं बेटा, एन की टर्म्स में बताइए ना. Sir, exact 20 bytes. हाउ This 20 will बाइट्स occupy बेटा? 20 bytes. हाउ 20 बाइट्स? सर 60 होगा ना. H- Hello. हाँ बोलो. हाउ 20 बाइट्स? Hello. हेलो. Yes, sir. हाउ 20 बाइट्स? So 4, sir, 4 bytes for integer x is equals to 0. यस, फॉर एक्स बोल सकते हो आप. केवल एक्स के लिए 4 बाइट. Yes, sir. For 4 for I, आई फॉर यस. 4 for return, 4 फॉर रिटर्न. नो रिटर्न. रिटर्न अभी हम कंसीडर and नहीं कर 4 रहे हैं. for रिटर्न वी आर नॉट कंसीडरिंग राइट नाउ. ओके, इफ यू कंसीडर रिटर्न देन इट इज 4. और किसके लिए? so for I plus plus increment. नहीं बेटा, आई के लिए एक बार ले लिया ना हमने. फर्स्ट ऑफ ऑल So आइडेंटिफाई हाउ इसमें मेनी वेरिएबल्स आर देयर. कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, ये आइडेंटिफाई करिए केवल बेटा. sir 3 कौन कौन से हैं? नेम देम फास्ट. x I एक्स, आई. and a. ए इज अ वेरिएबल. वेरी गुड. और कुछ नहीं है इसमें वेरिएबल में? Yes, sir. दर्शित, आप बताओ. No, सब 4 है ना फोर्थ वेरिएबल चौथा तो. कौन सा है? जल्दी बताएं. फोर्थ कौन सा है? ए, एक्स, आई और एन. सर एन भी तो है. नो सर, n तो इंटीजर हो गया. तो ये सभी इंटीजर है बेटा अभी तक. ऑल आर इंटीजर्स.
पेटीएम पर फ्री कैशबैक था, मिल लिया यार। इंटीजर n, इंटीजर x, इंटीजर i। नंबर नोट कर बोल। हेलो, यस सर। बेटा 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, और उसमें से एरे का साइज कितना है? एरे में कितने एलिमेंट हैं? सर सर एरे के अंदर इसमें आई है तो इंट आई इक्वल्स टू 0 है। बच्चे एरे में एलिमेंट हैं n। जब भी हम लिखा है सबसे ऊपर पढ़िए, n इज द लेंथ ऑफ द एरे। यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरे में कितने एलिमेंट हैं? n n एलिमेंट्स हैं। तो एरे में कितनी बाइट लेने वाला है? सर n बाइट्स। बेटा n बाइट्स। n तो एलिमेंट है, यदि एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का है और वो 2 बाइट या 4 बाइट लेता है तो कितनी बाइट लेगा? सर 2 बाइट या 4 बाइट। तो एरे कितनी बाइट लेगा टोटल ओवरऑल? सर 2n बाइट्स। 2n बाइट्स या 4n बाइट्स, दैट्स इट। और n कितनी बाइट लेगा? n कितने नंबर ऑफ है यहाँ पर? n एक ही है, x भी एक ही है और i भी एक ही है, तो ये तीनों एक एक हैं, तो ये n बाइट्स, ये 1 बाइट लेंगे। ओके, देखो अब इन द अबव कोड 4n बाइट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द एरे। ये समझ में आएगा क्यों है 4 into n बाइट्स? क्योंकि n साइज है एरे का, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर है और हर एलिमेंट n बाइट ले रहा है, तो 4 बाइट ले रहा है, तो 4n बाइट्स हो गई ये। ठीक है? यस सर। और यस सर। our remaining 3 variables x, n and i, it will take 4 bytes because तीनों का नंबर एक ही है, तीनों x भी एक ही है, n भी एक ही है और i भी एक ही है, तो ये सब 1 into 4 होंगे एक्चुअली। यदि आप लोगों को ध्यान हो, मैंने पिछली स्लाइड में भी किया था, आई हैव मल्टीप्लाइड बाय दिस लाइक 1 into 4 किया था मैंने। सो फॉर ऑल दीज इट विल बी 4 बाइट्स। तो टोटल कितना हो गया? 4 into 3, ये 3 है, तो टोटल कितनी बाइट ले रहे हैं ये लोग? 12 बाइट्स। और ऊपर कितनी बाइट है मेरे पास? 4n बाइट्स, तो 4n plus 12। In this way we have got the total space requirement by this code. Is it okay? यस सर। बेटा बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, आपको कहाँ डाउट हो रहा है ये समझो बेटा एक बार। Like in the strength of only 2 class student, if you are not able to understand, तो फिर 60 में कैसे समझोगे आप? I am repeating it. First of all, just identify how much variables I am having in this. So मैंने क्या क्या आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले a है, a पहला वेरिएबल है, इसके कितने, एक एरे है, तो एरे में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे पता लगा मुझे कितने एलिमेंट है? n। सो एरे की साइज हो गई n। अब एरे में n Yes, sir. एलिमेंट है और हर एलिमेंट यदि 2 बाइट्स या 4 बाइट लेता है तो मुझे इसको 2 से या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल कितनी बाइट्स होगी मेरे पास? 2n या 4n। तो ये मेरा एरे का साइज हो गया, एरे का साइज हो गया ये। अब सपोज करो कि एक सिंपल सा एरे ये है बेटा, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, मान लो 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4 एलिमेंट हैं। अभी चारों इंटीजर टाइप के हैं। एक इंटीजर कितनी बाइट लेता है? 2 बाइट्स। 2 या 4। तो टोटल 4 एलिमेंट हैं, जो 4 मिला के कितनी बाइट्स लेंगे ये लोग? पूरा एरे कितनी बाइट लेगा? सर 8। 8 बाइट इन द केस ऑफ 2, और इन द केस ऑफ 4 इट विल टेक 16 बाइट्स, 16। है ना? तो वही चीज यहाँ हो रही है, यदि n एलिमेंट है तो n को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं हम n के ऊपर। n इज अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, देन इट विल टेक 4 या 2 बाइट्स। इज इट सर ओके? आपने यहाँ पर n इंटू 2 कराना तो यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं ना, 4n कर भी हो सकते सकता है हैं, ना। वो मैंने यहाँ लिखा है इधर राइट में, देखो आप राइट में लिखा हुआ है 4 into n, इसलिए मैंने ओके यहाँ सर। 2 into n दूसरा बता दिया आपको। आप कंफ्यूज मत हो, केवल एक ही याद रखो, आप 2 याद रखो आप, ठीक है? ओके सिमिलरली सर। इंटीजर n इज ऑफ, ये केवल एक है नंबर में, एंड इट विल टेक 2 बाइट्स, तो टोटल कितनी बाइट लेगा n? 2 बाइट्स। सिमिलरली x भी नंबर में कितना है? एक ही है,
तो ये कितनी बाइट लेगा 2 बाइट्स। सिमिलरली आई कितनी बाइट लेगा 2 बाइट्स। और भी 2 वेरिएबल है bytes. नहीं हमारे पास, यहाँ पर सब कवर कर लिए हमने। So it will overall take 2n plus 6 byte. 2n plus 6 bytes. और यदि 4 है तो 4 के केस में ये डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो गया। आप यहाँ देखो 4n plus 12 बाइट। ये तरीका है कैलकुलेट करने का। पहले आप सारे वेरिएबल्स अलग अलग कर लीजिए, फिर उसके बाद हर वेरिएबल के नंबर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको 2 या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, ये काम करना है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका है। इसी तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और भी एग्जांपल्स के आप निकाल सकते हो। कोई भी एल्गोरिथम आप निकालना बुक से और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी बताई है, वैसे तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, यहाँ तक मैं कर चुका हूँ एग्जाम्पल कवर। स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू ओनली। So now the time has like over, 11:50 is there, so I am ending this class. Or if you want to ask, you can ask now. कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप। और try to attend the classes. 2-4 लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। Ultimately you need to attend classes बेटा। क्योंकि if you have any problem regarding fees बेटा, तो फीस के लिए आप बात करो अपने अपने गौतम सर अवेलेबल हैं, उनसे आप डायरेक्टली बात करो और उसको रिजॉल्व करके क्लास अटेंड करो। आप लॉस क्यों कर रहे हो अपना? फीस के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल दिया जाएगा। आप अगर गौतम सर से बात करोगे तो ही तो सॉल्यूशन निकलेगा। Yes, sir. तो आप अपने दोस्तों को, जो भी फ्रेंड्स हैं क्लास में बच्चे, उनको एक बार कन्वे करो इंडिविजुअल लेवल पर कि इस तरीके से क्लासेस छोड़ने से अल्टीमेटली लॉस ही होना है Okay, sir. ना? फीस का मैटर तो अलग तरीके से सॉल्व होता है, ऐसे भागने से थोड़ी होता है वो सॉल्व। चलिए, Yes, इफ sir. यू हैव एनी डाउट यू जस्ट आस्क मी एंड नो नीड टू फियर। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 2-4 बच्चे हैं वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को। And if you want to Okay, share, sir. if you want to share the name of specific person, you can also share me individually. And I will promise you कि you will not your name will not be disclosed. Suppose someone is threatening you, someone is asking you for not joining classes, whether it will be of PAT or it will not be of PAT, you just tell me the name. Individually you can share me, no issue in that. Not on the group I am asking. You have my number, and I will Sir, surely, our name is already revealed no issue in that. because they know that only we 2-3 students are there who are taking the classes. कोई बात नहीं। आप अच्छा है आप विख्यात हो रहे हो इस केस में। टेक इट एज पॉजिटिव नोट Yes, एक्चुअली। sir. नो नीड टू बी Yes, sir. नेगेटिव एंड नो नीड टू थिंक कि कोई और सोच रहा है या क्या सोच रहा है। एक्चुअली लॉस अल्टीमेटली आपका ही होने वाला है। आप सोचो इस चीज को। बाद में वो लोग आके पढ़ाएंगे नहीं आपको जाकर कहीं पर भी, या वो लोग आपको कहीं समझाने नहीं वाले, एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाले हैं या फ्यूचर में हेल्प नहीं करने वाले। Yes, sir. ओके, वेलकम अवधेश, हाउ आर यू? सर यस अवधेश। सर मैं अवधेश सोनी हूँ। मैं फिजिक्स सोनी हूँ सर। किसी दूसरे के नाम से मैंने बनाया है सर। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर कर रहा है। यू आर ब्रज किशोर। यस सर, मेरा नाम मत लेना सर कभी भी। अभी भी मैं आपको चैट बॉक्स में सब वो आपको मैसेज कर दूंगा अपना अटेंडेंस। बच्चे इतना डरने की जरूरत नहीं है। सर आपको पता नहीं, मैंने भी पहले साथ दिया था सर। कॉलेज का मैंने भी पहले ऐसे ही अटेंडेंस में साथ दिया था, लेकिन बहुत बेकार बड़ा हो गया मेरे साथ सर। ओके, आप ठीक है। मैं आपको फोन पे सब कुछ समझा दूंगा, आपको बाद में कॉल करूंगा सर। दैट इज व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू आस्क कि डरने की जरूरत नहीं है। और लाइक इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट शेयर इट विद मी डायरेक्टली, नो इशू। सर मैं सर आपको कॉल सर करूंगा। किसी से डरने की सर कोई बात नहीं है, डर किसी से भी नहीं रहे। बस सर एक ये इशू रहेगा कि जैसे जब रेगुलर कॉलेज चालू हो जाएगा, तो जब जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं या छुट्टी वाले टाइम पर कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो उस टाइम पर क्या है, हमारे को कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा। और इसी वजह से सर मोस्टली स्टूडेंट्स जो हटे हैं ना,
वो सिर्फ इस डर की वजह से हटे हैं, या नहीं, I तो दे आर understand. सीरियसली हैविंग यही इश्यूज प्रॉब्लम है। कि उनको फीस देने में प्रॉब्लम है, या फिर वो इस डर से हटे हैं। तो मेन दो यही रीजन है, डरता सर कोई भी किसी से भी नहीं है, बिकॉज ठीक है एवरीबॉडी नोज कि अगर किसी ने कुछ भी करा तो फैकल्टी बैठी है। यस, वही मैं कहने वाला हूँ, उस पढ़ाई के इशू में भी डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई के लिए भी फैकल्टी बैठी हुई है यहाँ पे। आपको यस सर, कभी कोई भी इशू आएगा एग्जाम्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो आई एम देयर एंड फैकल्टी मेंबर्स आर देयर। मैं आपको लाइक और फैकल्टी मेंबर्स आपको हेल्प करेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। ठीक है, दो चार लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो मान लीजिए कि आप मतलब आप सोच सकते हैं कि वो आपको नहीं बताएं या कुछ करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे सब मतलब वो सब समझते हैं एक्चुअली। यस सर, अभी आप खुद भी ऑब्जर्व करो कि आप खुद ही कह रहे हो कि ज्यादातर लोग उसी वजह से बाहर गए हैं, तो क्या वो लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे बाद में? वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नहीं करेंगे सर, बट सर चलो। दैट्स समथिंग डिफरेंट एंड दैट्स समथिंग जो 2 महीने बाद की बात है, बिकॉज 2 महीने अभी कॉलेज खुलने पॉसिबल नहीं है हम्म एटलीस्ट, हम्म तो हम्म, उसकी भी इतनी कोई टेंशन है नहीं, बाकी ठीक। फ्यूचर में देखेंगे फिर होगा जो। यस, वेरी गुड, दैट्स अ गुड स्पिरिट, आई अप्रिशिएट, वेरी गुड। है ना? और लाइक इफ यू आस्क अदर पीपल आल्सो टू ज्वाइन इट विल आल्सो बी गुड। उनको भी आप कन्विंस करने की यस कोशिश सर, करो सर आई विल जिसको, ट्राई। है ना, जिसको भी आप जानते हो, नो इशू इन दैट। एक्चुअली अल्टीमेटली लॉस तो आप लोगों का होने वाला है बेटा, इसमें भी आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो डेफिनेट है ये तो। इसमें ना तो शायद मैनेजमेंट का लॉस हो रहा है, ना देखा जाए तो एक्चुअल में जो लॉस होता है वो आप लोगों का होने वाला है ना कि सर मैं आपको कॉल यस सर, पर समझाऊंगा, सर मैं आपको कॉल पर सब समझा दूंगा, या जस्ट आपको अभी कॉल करूंगा मैं। चलो ठीक है बच्चे, है ना? अभी के लिए मैं ऑफ करता हूँ फिर, यू जस्ट एंजॉय। अभिषेक, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, दर्शिता इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और नो सर। ओके, डन, ठीक है, थैंक ओके यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा अभी नाम मत लो सर।